Question number 1. A p-n junction diode is formed by joining which two types of regions? किन दो टाइप्स के रीजन्स को ज्वाइन करने से एक p-n junction diode फॉर्म होता है? The correct answer is option number C, p-type and n-type semiconductors. जब p-type and n-type semiconductors रीजन्स को ज्वाइन किया जाता है तो एक स्पेशल जोन क्रिएट होता है जिसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं. इस डिप्लीशन रीजन की यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. Question number 2. The formation of a depletion region in a p-n junction diode is due to. p-n junction diode में depletion region का जो formation होता है वो किस वजह से होता है? The correct answer is option number B, diffusion of charge carriers. जब p-type and n-type regions join किए जाते हैं तो holes और electrons opposite sides में diffuse होते हैं और leave करते हैं एक region को जो depleted होता है mobile charge carrier से, जिसे depletion region कहते हैं. ये जो depletion region होता है ये control करता है diode में current के flow को. Question number 3. The built-in potential barrier in a p-n junction diode opposes the flow of. p-n junction diode में जो built-in potential barrier होता है वो किस flow को oppose करता है? The correct answer is option number C, both majority and minority carriers के flow को. जो built-in potential होता है वो एक wall की तरह act करता है. इस wall की वजह से both majority and minority carriers का junction को cross करना difficult हो जाता है in the absence of an external voltage in case of forward bias. Question number 4. What happens to the depletion region when a p-n junction diode is forward bias? जब किसी p-n junction diode को forward bias किया जाता है तो उसका depletion region पर क्या इफेक्ट पड़ता है? The correct answer is option number B, narrow. जब p-n junction diode को forward bias किया जाता है तो जो external voltage होता है वो oppose करता है built-in potential barrier को junction पर, जिसकी वजह से depletion region के across जो effective electric field होता है वो reduce होता है और इसकी वजह से depletion region की जो width होती है वो narrow होती है. Question number 5. How does reverse bias affect the depletion region width? एक p-n junction diode को जब reverse bias किया जाता है तो उसका depletion region की width पर क्या इफेक्ट पड़ता है? The correct answer is option number C, increases. जब p-n junction diode को reverse bias किया जाता है तो जो external voltage होता है वो p-n junction पर जो built-in potential होता है उसे strengthen करता है, strong करता है, जिसकी वजह से depletion region की जो width होती है widen हो जाती है further into both p and n regions. Question number 6. In reverse bias, the current flowing through a p-n junction diode is called. p-n junction diode को reverse bias करने पर उसके थ्रू जो करंट फ्लो करती है वो कौन सी होती है? The correct answer is option number B, लीकेज करंट. जब p-n junction diode को रिवर्स बायस किया जाता है तो आइडियल कंडीशन में डिप्लीशन रीजन सिग्निफिकेंटली वाइडन हो जाता है और डायोड एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह, यानी कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती है. लेकिन प्रैक्टिकल केस में अ वेरी स्मॉल करंट स्टिल फ्लो करती है डायोड में, जिसे लीकेज करंट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. How does forward bias affect the capacitance of a p-n junction diode? p-n junction diode को forward bias करने पर उसका p-n junction diode के capacitance पर क्या इफेक्ट पड़ता है? The correct answer is option number B, capacitance increases. जब p-n junction diode को forward bias किया जाता है तो depletion region की जो width होती है वो reduce करती है, जिसकी वजह से depletion region narrow हो जाता है और उसकी वजह से capacitance increase करता है. Question number 8. Breakdown voltage in a p-n junction diode refers to the voltage at which. p-n junction diode में जो breakdown voltage होता है वो refer करता है to the voltage at which. The correct answer is option number B, reverse current increases sharply. p-n junction डायोड में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ये वो वोल्टेज होता है जिस पर डायोड एक्सपीरियंस करता है शार्प इंक्रीज इन रिवर्स करंट में. ये जो फिनोमेना होता है वो अकर होता है अंडर रिवर्स बायस कंडीशंस में. क्वेश्चन नंबर 9. द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ p-n जंक्शन डायोड इज. p-n जंक्शन डायोड की करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप की होती हैं? The correct answer is option number B, non-linear.
पीएन जंक्शन डायोड को जो फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो उसमें करंट एंड वोल्टेज के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे डिस्क्राइब किया जाता है डायोड इक्वेशन से, जो कि एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप होता है जो रिजल्ट करता है नॉन लीनियर IV कैरेक्टरिस्टिक्स को। You are a star. Keep challenging yourself. Question number 10. When designing circuits with PN junction diodes, it is important to consider the जब सर्किट्स को डिजाइन करते टाइम पीएन जंक्शन डायोड्स को यूज किया जाता है तो किस चीज को कंसीडर करना इंपॉर्टेंट होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। रियलिटी में जो डायोड्स होते हैं वो आइडियल नहीं होते हैं, वो एक्सहिबिट करते हैं सेवरल नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो सर्किट के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। Question number 11. Ideal diodes are a theoretical concepts. Real world diode exhibit a voltage drop even in forward bias due to। जो आइडियल डायोड्स होते हैं वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जबकि जो रियल वर्ल्ड डायोड होते हैं वो एक्सहिबिट करते हैं एक वोल्टेज ड्रॉप को इवन इन द फॉरवर्ड बायस ड्यू टू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीरीज रेजिस्टेंस। जो रियल डायोड्स होते हैं उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेवरल फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस और सेमीकंडक्टर एंड लीड्स के बिटवीन कांटेक्ट का रेजिस्टेंस। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ऑफन मोल्ड किया जाता है सीरीज रेजिस्टेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 12. In a PN junction diode, transit time refer to the time taken for। PN junction diode में जो transit time होता है वो refer करता है to the time taken for। The correct answer is option number B, charge carriers to cross the junction। पीएन जंक्शन डायोड में जो ट्रांजिट टाइम होता है वो रिफर करता है एवरेज टाइम को, वो एवरेज टाइम जिसकी रिक्वायरमेंट होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, ताकि वो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस ट्रेवल करके जंक्शन के अपोजिट साइड में रीच कर पाए। क्वेश्चन नंबर 13. लीकेज करंट इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज मेनली ड्यू टू। पीएन जंक्शन डायोड में जो लीकेज करंट होती है वो किसकी वजह से होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक कैरियर्स की वजह से। पीएन जंक्शन डायोड में जो लीकेज करंट होती है वो मेनली मैग्नेटिक कैरियर्स की वजह से होती है। मैग्नेटिक कैरियर्स जो जनरेटेड होते हैं थर्मल एनर्जी से, जो अलाउ करते हैं एक स्मॉल करंट को टू फ्लो इवन इन द रिवर्स बायस। Question number 14. When a PN junction diode is ideal without any leakage current, the current in reverse bias is। अगर PN जंक्शन डायोड आइडियल कंडीशन में है बिना किसी लीकेज करंट के, तो उस केस में रिवर्स बायस में करंट किस टाइप की होगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 0। अगर PN जंक्शन डायोड आइडियल कंडीशन में है तो उस केस में कोई भी लीकेज करंट फ्लो नहीं होगी और ऐसे में रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होगी वो 0 होगी। Question number 15. What is the effect of temperature on leakage current in a PN junction diode? PN junction diode में लीकेज करंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? The correct answer is option number B, increases। PN जंक्शन डायोड में जो लीकेज करंट होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हायर टेम्परेचर होता है वो क्रिएट करता है मोर मैग्नेटिक कैरियर्स को, जो कंट्रीब्यूट करते हैं लीकेज करंट में। क्वेश्चन नंबर 16. What is the significant limitation of real world PN junction diodes compared to ideal diode model? आइडियल डायोड मॉडल के कंपैरिजन में जो रियल वर्ल्ड पीएन जंक्शन डायोड्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ सीरीज एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जो रियल वर्ल्ड पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं उसमें सीरीज एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो कि कॉज करते हैं वोल्टेज ड्रॉप को एंड पावर लॉसेस को, जो कि अकाउंटेबल नहीं होते हैं आइडियल डायोड मॉडल में। Question number 17. Diodes can be used for rectification. What does rectification achieve in an AC circuit? रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में डायोड्स को यूज किया जाता है। एसी सर्किट्स में रेक्टिफिकेशन का ये प्रोसेस क्या अचीव करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्ट्स AC टू पल्सेटिंग DC विथ ओनली पॉजिटिव पीक्स।
रेक्टिफिकेशन का ये जो प्रोसेस होता है वो एसी सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में बाय अलाउइंग ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल टू पास और इन्वर्टिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल टू पॉजिटिव. Question number 18. In a full wave rectifier circuit using diodes, what happened to the negative half cycle of the AC input signal? फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में डायोड्स को यूज किया जाता है. ऐसे में एसी इनपुट सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के साथ क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज ब्लॉक कंप्लीटली. जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स जो होते हैं एसी इनपुट सिग्नल के, वो दोनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में. जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है एसी इनपुट सिग्नल का, वो इन्वर्ट हो जाता है टू बिकम पॉजिटिव एट द आउटपुट.